Welcome back at Apex TGT English site. Now today I'll discuss about All for Love, written by John Dryden. So let's see uh, what are the most important questions about All for Love. So now we see the basic introduction about All for Love. So All for Love, All for Love, written by Dryden. Dryden was a neoclassicist, and its setting was Alexandria in Egypt. It was a place in Egypt, Alexandria, which was related to great civilizations, Alexandria of Egypt, right? This was published in 1677, and there was explanation of defined the battle, that is Battle of Actium. The Battle of Actium between two persons. One was Octavius Caesar, who was the noble of Octavius Caesar, and second one was the rebellion of Antony. Sorry, the lover of Cleopatra, Antony and Cleopatra. So now we see next point, types of drama. This drama is in heroic drama, or you can say the heroic drama or heroic tragedy. This drama is written in a blank verse. This drama is written in a blank verse, and other kinds are if you say the heroic drama or heroic tragedy, right? So it was dedicated to Earl of Danby. Who was Earl of Danby? So mostly performed 123 times between 17 to 1800. Now we see the next page. Mark Antony. Now we see the characters. How many characters are there in this play? First major character, Antony, one of the Roman triumvirs, the tragic hero between love and duty or honor. Mark Antony was a tragic hero of this play, and he was a Roman triumvir. You can say a noble person of Roman Empire. He loved to Cleopatra. Now second was Octavius Caesar. He was a rival mentioned but does not appear on the stage. He does not appear on the stage during the play performed. Now the next one, Ventidius. Ventidius was a Roman person of Rome, so urging him to reclaim his honor. Ventidius begged to Mark Antony many times to be very clear about the love with Cleopatra. So now next character है Dolabella, Mark Antony's friend, involved in a love triangle and used in manipulates. And Dolabella, Antony's friend, involved in a love triangle used in a manipulate. Now next character is Alexas. Alexas was a eunuch, Cleopatra's eunuch and advisor of an scheming. Alexas जो होता है, एलेक्स जो होता है वो क्लियोपेट्रा का यूनक होता है, और वो एडवाइजर भी होता है क्लियोपेट्रा का, हमेशा दाएं बाएं लगा रहता है क्लियोपेट्रा के। सेरापियन है, यहाँ पर सेरापियन है। सेरापियन जो है मंदिर का पुजारी होता है, और ये 3 ओमेंस करता है, और वही ओमेंस डिसाइड करते हैं कि प्ले जब ओपन होता है तो सेरापियन के ओमेंस से ही ओपन होता है। एजिप्टियन प्राइस्ट हु ओपन्स द प्ले विद ओमेंस, राइट, 3 ओमेंस। मैरिस another Egyptian priest. Now next is Cleopatra, queen of Egypt, devoted love of Antony. Octavia, Antony's lawful Roman wife, sister of Octavius Caesar. Charmian, Cleopatra's attendants and confidant. Irus, Cleopatra's other attendants. एंटनीज के 2 बच्चों का यहाँ जिक्र किया गया है जो कि ऑक्टेवियस से पैदा हुए थे, अंटोनियो एंड अग्रिप्पिना। सो नेक्स्ट पेज देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं। यहाँ पर अब आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं, एमसीक्यूज आपको देखना है। व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑल फॉर लव? ऑल फॉर लव का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ऑप्शन डी, ड्यूटी एंड एम्बिशन, रोमन लव, लव एंड ऑनर, पैशन। तो ऑप्शन आपका ए, लव एंड ऑनर और ड्यूटी, इसमें ड्यूटी जो सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ए। द प्ले बिगिंस ऑन एंटोनीज। प्ले बिगिंस ऑन एंटोनीज। प्ले कैसे बिगिन होता है? एंटोनी के वेडिंग से, विक्ट्री, सेलिब्रेशन, डिफीट ऑफ आक्टियम से, बर्थडे से। तो प्ले जो है बिगिन होता है एंटोनी के बर्थडे पर। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट वाज द जॉन ड्राइडन्स फर्स्ट प्ले? जॉन ड्राइडन का फर्स्ट प्ले कौन सा था? स्पेनिश वॉर, ऑल फॉर लव, औरंगजेब, द वाइल्ड गैलेंट। तो जॉन ड्राइडन का फर्स्ट प्ले था वो द वाइल्ड गैलेंट। ऑप्शन बी, द प्ले एंड्स विद डबल सुसाइड ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा सिंबलाइजेस। जो प्ले एंड होता है उन्हें सुसाइड कर लेते हैं दोनों लोग, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। वो क्या सिंबलाइज करता है? ट्रिम्फ ऑफ रोमन वॉर, अल्टीमेट विक्ट्री ऑफ पैशन लव ओवर द वॉर, पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन, बिट्रेयल अलाइज। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, अल्टीमेट विक्ट्री ऑफ पैशनेट लव ओवर द वॉर। क्वेश्चन नंबर 3, for which play did Dryden write primarily for himself in a blank verse imitating Shakespeare style?
तो शेक्सपियर की स्टाइल को प्ले को इमिटेट करते हुए कौन सा लिखा गया है? इंडियन एम्परर, मैरिज अलामो, ट्रेनिंग लव, ऑल फॉर लव। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑल फॉर लव लिखा गया है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा को बेस करते हुए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी के साथ सब्सिडियरी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द ओमेन्स इज नॉट डिस्क्राइब्ड बाय सेरापियन इन ओपनिंग ऑफ द प्ले। अब यहाँ सेरापियन जो मंदिर का पुजारी होता है वो कौन सा ओमेन्स नहीं करता है प्ले के ओपनिंग में? तो स्ट्रॉम करता है, फिर लिविंग्स करता है, नाइल करता है, फ्लडिंग ऑफ नाइल्स नहीं करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यानी कौन सा ओमेन नहीं है? फ्लडिंग ऑफ नाइल, यही नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू द प्ले ऑल फॉर लव। प्ले के रिगार्डिंग ऑल फॉर लव के संदर्भ में कौन सा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट? एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इज अ रिटेलिंग स्टोरी ऑफ Shakespeare's All for Love. Other title of the play is World Will Last the Sea. The title was inspired by the Three Musketeers motto, all for one and one for all. Option D, it is known as the tragedy of passion. So now we see what is the correct answer. This is a really tough question, level of tough questions. So you have to choose the incorrect option. So now we see once again, it is known as the tragedy of passion is correct. Option C, the title was inspired by the Three Musketeers motto, all for one and one for all. It's also correct. Option D, the other title of the play is The World Will Last. It's also correct now. So there is remain one A option that is correct. What is incorrect here? The Antony and Cleopatra All for Love. You know, it should be changed to replace one another. It should be the All for Love is a retelling story of Shakespeare's Antony and Cleopatra. It means कि ये कहानी जो है क्लियोपेट्रा एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की कहानी से ली गई है, जो इस हिस्से पर जो ऑल फॉर लव के रूप में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। व्हाट इज इन करेक्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द हीरोइक कपलेट। तो हीरोइक कपलेट किसने लिखा था? हीरोइक कपलेट ड्राइडन ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ड्राइडन ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव का मेन सोर्स क्या? प्लूटार्क, लाइफ, शेक्सपियर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, हिस्ट्री, अकाउंट, रोमन पोएट्री। तो ये भी नहीं यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है। हु आर ट्रिम्बर्स इन द प्ले इन हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट। ट्रिम्बर्स कौन थे प्ले में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से? तो ट्रिम्बर्स कौन थे? एंटनी लिपिडस, ऑक्टेवियस सीजर। ये थे 4 ए। एंटनी लिपिडस सीजर, एंटनी ऑक्टेवियस एंड वेंटिडियस, जूलियस सीजर, एंटनी एंड पॉम्पी। तो डी नहीं थे, एंटनी ऑक्टेवियस एंड वेंटिडियस नहीं थे। तो फिर कौन था? एंटनी लिपिडस एंड सीजर। वैसे तो ये दोनों ऊपर के नीचे के एक ही हैं, ऑक्टेवियस सीजर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑक्टेवियस का है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेक्ट जो है ट्रिम्बर्स थे, एंटनी लिपिडस एंड सीजर, ये 3 थे ट्रिम्बर्स, रोमन ट्रिम्बर्स हिस्टोरिकल। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है। वेयर इज ऑल फॉर लव सेट। तो ऑल फॉर लव सेट मैंने बताया ही था आपको कि अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में सेट हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हु वाज अलेक्सोस। हु वाज अलेक्सोस। अलेक्सोस वाज ए यूनक एंड अटेंडेंट ऑफ क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा यूनक, सो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हु क्राइज ऑक्टियम। ऑक्टियम ओ, ये कौन क्राई करता है? क्लियोपेट्रा क्राई करता है, सेरापियन क्राई करता है, वेंटिडियस क्राई करता नहीं, एंटनी क्राई करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ऑन हुज बर्थडे डज मच ऑफ द प्ले एक्शन टेक प्लेस। किसके बर्थडे पर ज्यादातर प्ले में एक्शन टेक प्लेस हुए हैं? तो किसके प्ले पर? बर्थडे पर ही मैंने आपको शुरू में बताया था। और वो बर्थडे किसका था? मार्क एंटनी का। तो मार्क एंटनी पर एंटनी के मार्क एंटनी का। ये था आपका 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि हो गया 11 में कौन कहता है किसके बर्थडे पर ये सब सेलिब्रेट होता है? एंटनी के बर्थडे पर सेलिब्रेट होता है। ये मतलब प्लेस में जो प्ले में एक्शन होते हैं वो टेक प्लेस होता है, सेलिब्रेट नहीं होता। तो कंसर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है। हाउ डज वेंटिडियस कंपेयर एंटनी। वेंटिडियस का एंटनी से कैसे कंपेयर किया गया है? लायन के, टाइगर के, ईगल के, वुल्फ के। वेंटिडियस से कंपैरिजन एंटनी ने कैसे किया? एक टाइगर के रूप में कंपैरिजन किया है। 12 का बी यानी 12 का बी। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है। Who says oh find word। किसने कहा oh find word? Respect how disdain it। तो 13 ये किसने कहा? ऑक्टेवियस ने नहीं कहा, इरस ने नहीं किया, चार्मियन ने कहा, क्लियोपेट्रा ने कहा। क्वेश्चन नंबर 14 है। हु इज ऑक्टेविया। ऑक्टेविया कौन है? क्वेश्चन नंबर 14 में ऑक्टेविया कौन है? क्लियोपेट्रा सिस्टर है, एमेट ऑफ क्लियोपेट्रा है, एंटनीज डॉटर है, एंटनीज वाइफ, ऑक्टेवियस सिस्टर, ऑक्टेवियस सीजर की सिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 15 है। द लाइन नो लवर्स लिव्ड सो ग्रेट आर डाइज। ये लाइन किसने कहा है? नो लवर लिव्ड सो ग्रेट आर डाइज। ये लाइन किसको रिफर की गई है? ऑक्टेविया एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, डोलावेला एंड क्लियोपेट्रा। तो 15 नंबर में ये लाइन जो है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा के लिए कहा गया है कि ऐसा प्रेमी प्रेमिका कभी जीवन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है। हाउ लॉन्ग हैव एंटनी एंड क्लियोपेट्रा बीन इन लव एज referred in the preference in the play। कितने सालों तक वो एक दूसरे से प्रेम में रहे? 7 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी 10 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी कितने सालों से वो रहे? वो एक दूसरे के टच में 10 सालों से। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। वेंटिडियस बिलोंग टू। वेंटिडियस कहां से बिलोंग करता है? इजिप्ट डिस्ट्रस, रोम डिस्ट्रस, इजिप्ट, सीरिया डिस्ट्रस, बोथ। तो करेक्ट ऑप्शन है रोम डिस्ट्रस इजिप्ट।
यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। वेंटिडियस बिलोंग टू विच कंट्री एंड डिस्ट्रेस टू अदर, वो रोम से बिलोंग करता है और डिस्ट्रेस किसके साथ किया था उसने, इजिप्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु कंपेयर्ड चार्मियन एंड हु आर चार्मियन एंड इरस, इरस और जो चार्मियन कौन थे, डॉटर ऑफ एंटनी, मेड्स ऑफ द क्लियोपेट्रा, सिस्टर ऑफ ऑक्टेविया, प्राइस ऑफ आइसिस, प्राइस ऑफ आइसिस नहीं थे, ऑक्टेविया ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, यानी बी मेड्स ऑफ द क्लियोपेट्रा, यानी ये दोनों क्या थे, मेड ऑफ क्लियोपेट्रा, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा प्राइमरली सिंबलाइजेस, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा को प्राइमरली क्या सिंबलाइज कर सकते हैं आप, तो रीजन के लिए, ऑनर के लिए, पैशन के लिए, ड्यूटी के लिए, तो अगर इनको सिंबलाइज करना है तो ये दोनों किससे जुड़े हुए थे इतने सालों से, पैशन से, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ डज एंटनी डाई इन द प्ले, एंटनी किस तरह से प्ले में डाई करता है, पॉइजन बाय एस, फॉल्स ऑन हिज स्वॉर्ड, इन अ बैटल, स्टैब्ड बाय अलेक्सास, तो देखो दोनों लोग मरते हैं, एंटनी मरता है और क्लियोपेट्रा मरता है, तो एंटनी क्लियोपेट्रा जो है ये के लिए ऑप्शन ऑफ ए सही है, ठीक है, और एंटनी के लिए ऑप्शन बी सही है, यानी एंटनी जो है तलवार के ऊपर गिर पड़ता है और जब से ये खबर सुनती है, देखिए क्लियोपेट्रा गलत खबर भिजवाती है कि एंटनी को, कि शायद एंटनी रुक जाए वार, अब वो अपने देश लौट के न जाए अपनी पत्नी के पास, और वो शायद मैं ये खबर भिजवाऊं कि क्लियोपेट्रा सुसाइड कर लेंगे तो रुक जाए, वो ये सदमे को झेल नहीं पाता और वो जो अपनी तलवार भोंक लेता है, ठीक गिर पड़ता है उसके ऊपर खड़ी करके, और उसके बाद जब ये खबर जो है ये पता चलता है किसको, क्लियोपेट्रा को, तो क्लियोपेट्रा वाकई जीवित होती है और जो है फिर उनको लगता है कि मेरा प्रेमी मर गया तो मैं क्या करूंगा, तो वो जो है स्नेक के पॉइजन से एस्प हो जाती है, यानी स्नेक का पॉइजन पी लेती। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज वेंटिडियस इन अ प्ले, हु इज वेंटिडियस टू एंटनी, वेंटिडियस और एंटनी, वेंटिडियस टू एंटनी, वेंटिडियस कौन था एंटनी के प्रति, कैसे, यानी एंटनी का क्या था, यूनक था, जनरल था, फ्रेंड, एडवाइजर था, राइवल था, तो 21 में करेक्ट ऑप्शन है जनरल, वो वेंटिडियस जो है इसका जनरल था, मैंने आपसे पहले बताया था कि ग्रेट रोमन जनरल था वेंटिडियस, ठीक है, जो बार बार एंटोनी को रोकता था कि तुम क्लियोपेट्रा के प्यार में इतना मत डूबो, खतरनाक है, खतरा है, ऑल इज नॉट जज इन लव एंड वॉर। सो अगला क्वेश्चन है, विच मेजर कैरेक्टर इज केप्ट ऑफ स्टेज एंड इन द बैकग्राउंड, कौन सा मेजर कैरेक्टर जो है कभी स्टेज पर नहीं दिखाई दिया और उसे बैकग्राउंड में रखा गया, एंटोनी आया ही था, क्लियोपेट्रा आई थी, वेंटिडियस आया ही था, कौन सा, ऑक्टेवियस सीजर, वाकई में ऑक्टेवियस सीजर को कोई स्टेज पर कहीं परफॉर्म नहीं किया गया है, सिर्फ उसका नाम था, वो एक उसको एंटी हीरो जरूर बना के रखे थे। नाउ इन विच फॉर्म इज ऑल फॉर लव रिटन, मैंने पहले बताया राइमिक हीरोइक कपलेट वो तो था ही, ब्लैंक वर्स रोज मिक्स्ड राइम, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा, मैंने आपको पहले बताया ब्लैंक वर्स, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वेयर वाज द एंटनी हिस्टोरिकली डिफीटेड बिफोर द प्लेस इवेंट, कहां पर ये एंटनी की डिफीट हुई थी, अलेक्जेंड्रिया, ऑक्टियम, रोम, सीरिया, तो आपके पास बैटल ऑफ ऑक्टियम हुआ था, तो करेक्ट प्लेस जो होगा बैटल ऑफ ऑक्टियम, यानी बैटल ऑफ ऑक्टियम में ही इसकी डिफीट हुई थी, तो ये डिफीट ऑक्टियम एग्जैक्ट प्लेस होगा, इस तरह डिफीट की बात है जहां वार हुआ था। हु इज एम्परर ऑफ रोम इन इटली, रोम में एम्परर कौन था इटली में, ठीक है, तो जूलियस सीजर, ऑक्टेवियस सीजर, लेपिडस, एंटोनी, तो कौन था, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है ऑक्टेवियस सीजर। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, So who was Cleopatra's previous lover mentioned in the play? Previous lover कौन था क्लियोपेट्रा का जो कि प्ले मेंशन किया गया है, पोम्पी, जूलियस सीजर, ऑक्टेवियस, डोलाबेला, तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस जो क्लियोपेट्रा को प्रीवियसली लव करने वाला था जूलियस सीजर था भी। 27 नंबर है, टू whom is all for love dedicated, all for love किसको डेडिकेट है, मैंने आपको पहले बताया था, आर लव डन बी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। 27 नंबर, हु फाल्सली इन्फॉर्म एंटोनी क्लियोपेट्रा हैज किल्ड हरसेल्फ, किसने झूठ खबर दी एंटोनी को कि क्लियोपेट्रा ने अपने आप को मार लिया, वेंटिडियस, डोलाबेला, अलेक्सियस, सेरापियन, तो 28 का जो है वो बी सही, 28 का बी, यानी ये डोलाबेला गलत खबर देता है कि जो है एंटोनी को गलत खबर देता है क्लियोपेट्रा ने अपना जो है सुसाइड कर लिया है, अपने आप को मार लिया है, 28 का बी। 29, हाउ डज क्लियोपेट्रा डाई, क्लियोपेट्रा कैसे डाई होती, मैंने आपको ये बताया था, स्टैब नहीं, बैटल नहीं, ए बाय स्नेक आस्प पॉइजन, यानी सांप से कटवा लेती है अपने आप को, ठीक है। हु डिलीवर्स यूलॉजी फॉर द लवर्स एट द एंड, कौन यूलॉजी जो है इन लवर्स के लिए कौन यूलॉजी प्रस्तुत करता है प्ले के अंत में, तो अलेक्सास, वेंटिडियस, डोलाबेला, यानी सेरापियन, जो मंदिर का पुजारी होता है वही जो है इनके लिए यूलॉजी देता है, जब ये दोनों मर जाते, कौन, एंटोनी, क्लियोपेट्रा मर जाते, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लियोपेट्रा सन इन द मेंशन्ड इन द प्ले, क्लियोपेट्रा कौन सा सन था जिसको इस प्ले में मेंशन किया गया है, तो 31 का एंटोनी जूनियर नहीं होता, अलेक्जेंडर नहीं होता, पोर्टली नहीं होता, सिजेरियन, इनका एक बेटा होता है जिसको प्ले में मेंशन किया गया है। 32, एज न्यू क्लासिस्ट ड्राइडन स्ट्रिक्टली फॉलो, न्यू क्लासिकल होने के बावजूद भी ड्राइडन ने क्या फॉलो किया है, अरिस्टोटल ने कौन सा रूल फॉलो किया, नो यूनिटीज ऐसा हो नहीं सकता, एलिजाबेथ फ्रीडम ऐसा है नहीं, ओनली एक्शन ऐसा नहीं, तो ऑप्शन सी, यानी 3 यूनिटीज को फॉलो किया है। 33, द एक्शन ऑफ द प्ले इज कन्फाइंड, जो प्ले में एक्शन होते हैं वो कैसे कन्फाइंड होता है, तो 31 का ए मल्टीपल लोकेशंस ओवर वॉर, अलेक्जेंड्रिया और द वेरी शॉर्ट पीरियड, ऑब्जर्विंग यूनिटी ऑफ टाइम, प्राइमरली ये भी नहीं आती, अलेक्जेंड्रिया और द वेरी शॉर्ट पीरियड, बी ऑप्शन करेक्ट। 34 का है, इन विच ईयर ड्राइडन बिकम द पोएट लॉरेट,
किस साल जो है ड्राइडन पोएट लॉरेट बने, तो 1668। ऑफिशियली 70 में बन गए थे, लेकिन बन ही गए थे 1668 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, एंटनी इज टॉर्न बिटवीन लव एंड ड्यूटी एंड फाइनली। एंटनी इज टॉर्न बिटवीन लव एंड ड्यूटी एंड फाइनली। फाइनली क्या उनके साथ हुआ था, तो ड्यूटी प्रिवेल्स, लव प्रूव्स मोर पावरफुल, ही चूजेस ऑनर और बोथ रीजन्स विन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा डी, लव प्रूव्स मोर पावरफुल फॉर एंटनी। क्वेश्चन नंबर 36, विच इज कंसीडर द फर्स्ट ड्रामा इन ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में कौन सा ड्रामा पहला था जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया, तो ऑप्शन बी, गॉर्बोड था। 37 है, वेयर वाज द एंटनी डिफीटेड बिफोर द मेन इवेंट्स ऑफ ऑल फॉर लव। एंटनी कहाँ डिफीट हुआ था, तो 37 का अलेक्जेंड्रिया नहीं, वहां पर एक्शन सेट किया गया था। रोम नहीं, वहां पर आइसिस टेंपल नहीं, ऑक्टियम, बैटल ऑफ ऑक्टियम। Who infuses desire for the victory and military actions in the Antony's heart? Alexas, Dolabella, Ventidius and Serapion। 38 फिर से देखते हैं। 38 who infuses a desire for victory and military actions Antony's heart? तो अलेक्सास नहीं है, सेरापियन नहीं है, डोलाबेला नहीं, वेंटिडियस। यानी 38 का सी। वेंटिडियस उनको बार बार जो है चेतावनी देता रहता है, किसको, जो है एंटोनी को, कि जो है तुम अपनी वार की तरफ ध्यान दो, ना कि प्यार की तरफ ध्यान दो। 39 नंबर क्वेश्चन है, आ रहे हैं देर बाद। तैयार हो तुम? अरे हमका कपड़ा पहनना ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन है, Who is the emerging emperor of Rome in the context of the play? कौन emerging emperor होता है रोम का इस प्ले के कॉन्टेक्स्ट में? तो 39 में जूलियस सीजर नहीं होता, तो मार्क एंटनी होता, लिपिडस नहीं होता, कौन emerging होता है? ऑप्शन बी यानी ऑक्टेवियस सीजर होता है। 40 नंबर है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द ऑक्टेवियस फ्रस्ट्रेशन विद एंटनी? व्हाट इज प्राइमरी कॉज ऑफ ऑक्टेवियस फ्रस्ट्रेशंस विद एंटनी? ऑक्टेवियस का क्या फ्रस्ट्रेशन होता है एंटनी के साथ? मिलिट्री डिफीट, एंटनी नेग्लेक्ट्स ऑक्टेविया, बिट्रेयल ऑफ एंटिडियस, लॉस ऑफ मिलिट्री डिफीट। तो 40 में क्या होता है कि क्या कारण होता है कि एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर दोनों में जो है एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाता है, क्योंकि एंटनी उसकी बहन सिस्टर जो होती है ऑक्टेविया, उसको ध्यान नहीं देता, उसको उतना तवज्जो नहीं देता, यही कारण होता है दोनों में युद्ध होता है। तो 40 का करेक्ट ऑप्शन बी। हु इज मेंशन्ड एज क्लियोपेट्रा's प्रीवियस लवर? ये तो पहले भी आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस लवर 41। तो 41 में आपको देखना प्रीवियस लवर कौन था, ऑक्टेवियस सीजर, पोम्पस, जूलियस सीजर, डोलाबेला। तो इनका जो है प्रीवियस लवर जो है वो पॉम्पी था, बी। ठीक। वहां पर मैंने आपको बताया था सर जूलियस सीजर, जो कि नहीं है, ये गलत आ गया था। वाकई में क्लियोपेट्रा का प्रीवियस लवर कौन होता है, पॉम्पी होता है। 42 टू हुम इज ड्राइडेंस ऑल फॉर लव डेडिकेटेड? तो किसको डेडिकेट किया गया है? थॉमस ऑसबॉर्न यानी अर्ल ऑफ डैनबी को डेडिकेट किया गया है। 43 हु फॉल्सली इन्फॉर्म एंटनी क्लियोपेट्रा हैज किल्ड हरसेल्फ? तो Who falsely informs Antony that Cleopatra killed herself? किसने falsely inform किया था? एलेक्सा ने, जो है एलेक्सास जो यूनक होता है उसने इन्फॉर्म किया था। किसको इन्फॉर्म किया था? एंटनी को, कि क्लियोपेट्रा ने अपने आप को मार लिया है। यही सही है। अगर आपको मैंने पीछे जो है सेरापियन, वेंटिडियस, डोलाबेला बता दिया, उसको मत मानिएगा, आप यही मानिएगा एलेक्सा। एलेक्स ने ही उससे बताया था, किसको? एंटनी को, क्योंकि वही उसका यूनक होता है, वही आगे पीछे लगा रहता है। अगर पीएससी क्वेश्चन मैंने आपको दूसरा कुछ ऑप्शन बता दिया तो उसको अपने दिमाग से हटा दीजिएगा। क्लियोपेट्रा की मौत को खबर कौन देता है? तो एलेक्स देता है। हाउ डज क्लियोपेट्रा डाई इन द प्ले? क्लियोपेट्रा कैसे प्ले में डाई होती है? तो बिल्कुल फैक्ट है, मैंने आपको बताया था भाई, स्नैक्स आस्प, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स डज पब्लिश प्ले इनसाइड? कौन सा स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो है प्ले में इंक्लूड होता है? तो ओनली प्रोलॉग एंड एपिलॉग, परफेक्ट डेडिकेशन, प्रोलॉग एंड एपिलॉग। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो है परफेक्ट डेडिकेशन, प्रोलॉग एंड एपिलॉग। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है आपका। 46 देख लेते हैं, व्हाट इज द थीम हाइलाइटेड एज कंट्रीब्यूटिंग टू द प्ले एंड्योरिंग अपील्स आर ड्राइडेंस रेपुटेशन? सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग फॉर लव। 46 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 47 देख लेते हैं, हु इज क्रेडिटेड विद सजेस्टेड द टाइटल ऑल फॉर लव इन सम अकाउंट्स दो अनक्लियर? तो किसने सजेशन दिया था इसके लिए? नो स्टैंडर्ड कंफर्म सोर्स, यानी यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड कंफर्म सोर्स नहीं है। 47 होगा, हु डिलीवर्स द यूलॉजी फॉर द डेड लवर्स एट द एंड ऑफ द प्ले? तो पहले ही मैंने बताया, क्वेश्चन रिपीटेड है, सेरापियन जो है डिलीवर करता है चीज। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लियोपेट्रा सन्स? क्लियोपेट्रा के सन का तो पहले भी आ चुका, सिजेरियन होता है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ड्राइडेंस पार्टिकुलरली रिनाउंड एज द मास्टर ऑफ विच लिटरेरी कैरियर? लिटरेरी फॉर्म्स, ब्लैंक वर्स, ट्रेजेडी, सटायर, एपिक, पोएट्री, कॉमेडी। तो आप लोगों को ये पता ही होगा वो मास्टर किस चीज के थे, सटायर के थे। एज न्यू क्लासिक्स व्हाट ड्रामेटिक्स प्रिंसिपल डज ड्राइडन फॉलो? तो ड्राइडन बी ऑप्शन सही, 3 यूनिटीज को फॉलो करते हैं। वेयर इज एक्शन ऑफ ऑल फॉर लव प्राइमरली कन्फाइंड टेंपल ऑफ आइसिस? हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। टेंपल ऑफ आइसिस में हुए थे ये सारे, जो टेंपल ऑफ आइसिस सराउंडिंग द प्लेस नियर अलेक्जेंड्रिया, इसलिए उसको अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है। अगर आपको टेंपल ऑफ आइसिस आ गया और अलेक्जेंड्रिया आ गया तो फिर इस कंडीशंस में जो है आपको
आइसिस टेम्पल के आसपास अलेक्जेंड्रिया में ये सारे एक्शंस कन्फाइंड हुए थे। 53 इन द प्ले एंटनी स्टॉर्म बिटवीन लव एंड ड्यूटी, द अल्टीमेटली क्या होता है ड्यूटी एंड ऑनर प्रिवेल, लव प्रूव्स मोर पावरफुल, ही बैलेंस्ड हिमसेल्फ। तो ये सही है, गलत यानी बी ऑप्शन सही है, इसको मैंने पहले बताया। व्हाट डज ड्राइडन डू इन द प्रोलॉग ऑल फॉर लव? ड्राइडन ने क्या किया प्रोलॉग में ऑल फॉर लव की? तो 54 में अटैक ऑन डिफेंस अगेंस्ट क्रिटिक। 55 है व्हाट इज द फोकस ऑफ एपिलॉग इन ऑल फॉर लव? ऑल फॉर लव में क्या फोकस किया गया है? अटैक्स ऑन द क्रिटिक नहीं, अटैक्स ऑन द क्रिटिक नहीं है। इमोर्टलाइज द एंटनी, पॉलिटिकल कमेंट्री, अपील्स टू द ऑडियंस स्पेशली वीमेन एंड प्रेज थीम ऑफ डाइंग ऑल फॉर लव। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है बी। तो ये थे आपके 55 क्वेश्चंस और आप लोग इसको देख लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे क्लियोपेट्रा की डेथ की खबर कौन देता है? क्लियोपेट्रा की डेथ की खबर कौन देता है? तो एलेक्स जो यूनक होता है वही देता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चंस। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूट हो, उस समय मैंने शायद दूसरा ऑप्शन बता दिया था, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है क्लियोपेट्रा की डेथ की खबर एलेक्स देता है। तो ये थे हमारे